यहाँ पे मेरा घर 2 मिनट पे है। हाँ, मैं सुबह उठ के आता हूँ, मेरे को चाहिए तो दोपहर को मैं मेरा बच्चा स्कूल से आता है उसको मिल सकता हूँ। आई हैव अ ब्यूटीफुल लेक इन द कैंपस। आई गेट टू वर्क विथ रियली ब्रिलियंट पीपल, वैल्यू ओरिएंटेड पीपल। मज़ा आता है। तो मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ? लेकिन अगर किसी को लगता भी हो कि किया है तो भी वो अपने आप को ये स्टोरी ना सुनाए कि मैंने सेक्रीफाइस किया है। तो एक रेस है और उसमें जब तक अपन उसमें रहते हैं उसका कोई एंड ही नहीं है। वो एक फील्स लाइक कि उसमें एक बार पार्टिसिपेट करने जाओ तो वो अभी ये भी चाहिए ये भी चाहिए। पैसा कमाना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है, काफ़ी आसान चीज़ है। You talked about the benchmark thing, the salary benchmark thing. So like personally for me, like I feel that first of all I want to ask that is this benchmark your, like how do you decide this benchmark? Is this a personal benchmark? Like for me I think a benchmark is like what my peers are earning. Let's say my peers have this average the stipend they are getting for internship, then I compare, then I feel good or bad that I am getting better than it or worse than it. So like I guess it is a bit difficult to, because how do you get validation? Again, first of all you get validation, like again the ideal answer is that you should get it from inside, but I guess in reality you sort of get it from outside only, seeing that like let's say I'm earning this, my peers are earning this, I'm earning better, so I'm feeling better. So did this happen to you, that, and how did you like change from this and decide your own benchmark that like no, what I'm earning here is still giving me satisfaction? And this thing, first this question and a sort of follow-up question to you said that you didn't felt this as a sacrifice. So could you elaborate on that? Because like my personal, like till now I thought that working like in social sector like is a bit of like sacrificing your sort of material needs, like you're not living in a metro city, you're not getting that comfortable lifestyle. So you do not think, why do you do not think as a sacrifice? Like could you elaborate on that? Okay, so I'll start with the second question first, and then we'll go to the first one, and you may have to remind me at that time about the first question if required. So अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग जवाब हो सकते हैं। मेरे लिए थोड़ी आसानी ज़रूर है कि मैं बचपन से इसी जगह पे पला बड़ा हूँ। सो फॉर मी एक्चुअली लिविंग इन अ सिटी लाइक मेट्रो वाज सैक्रिफाइस। मैं लिविंग इन अ सिटी लाइक पुणे वाज सैक्रिफाइस, वेयर देयर इज सो मच ऑफ पोल्यूशन, सो मच ऑफ ट्रैफिक, सो मच ऑफ नॉइज। तो काहे के लिए इतना करना? So since you have chosen this as a career, I believe, what makes this career sustainable for you? I'm not asking like a purpose or this. What makes it financially, economically sustainable for you? Because I don't believe that, you know, the villages pay you or something like that. And in order to work for a long time, you need some sort of sustenance. True. So how do you manage that? True. It's a very practical question. I will answer for us specifically, but then I will also kind of do some abstraction of it. So, I mean, for us, all of us who work here in Search is a registered not-for-profit. And so everybody, we're around 200 of us who work here in Search as Karyakartas. So each one of us gets a salary. And Search gets its financial resources from various benefactors, donors. So each one of us, based on our own education background, our own responsibilities in Search, we all have salaries. Every year we undergo an appraisal process, and like in any other company you would have some kind of a increment. That also happens with us. So that's quite standard, I would say. But if I have to do an abstraction of it, I would suggest that ultimately, I mean, पैसा हम तो तैयार नहीं करते, पैसा तो समाज में है। समाज से पैसा हमें क्यों मिलता है? तो hopefully we are doing something which is productive, which is useful to the world, and that's why one of the way world compensates for it is by giving you money. क्योंकि दुनिया के भी vested interest में है कि ये बंदा जिए, अच्छा कुछ करे। हालांकि उसमें there are quite a few inefficiencies in the system or skewness in the system, but that's like the general logic. So
एब्स्ट्रैक्शन ये है कि इवन इन द सोशल स्फीयर इफ वी डू समथिंग विच इज़ वैल्यूएबल फॉर पीपल, it is also in society's interest to help us survive because we are doing something of social value. हालांकि अगर एक टिपिकल प्राइवेट प्रैक्टिस के तौर पे अगर देखते हैं तो द कस्टमर वुड बी द वन हु वुड बी पेइंग फॉर द सैलरी. व्हाट कुड बी सम ऑफ द डिफिकल्टीज इन इट? Most likely you will have to restrict your offerings only to those who will have paying capacity in their pocket. Because if my survival is dependent on how many people come to my clinic, let's say if Amit is a surgeon and is doing his private practice, there is also a possibility that with more people or with more money per patient, he can spin out more profit. So there is a potential for greed, which could also take over. At the same time, if very few people come, then there is also insecurity of क्या होगा. So कई बार हम देखते हैं कि प्राइवेट प्रैक्टिस में नॉट जस्ट रिलेटेड टू मेडिसिन बट क्वाइट अ फ्यू अदर प्रोफेशंस हम आजकल ये देख रहे हैं कि ग्रीड इज टेकिंग ओवर और इनसिक्योरिटी इज टेकिंग ओवर एंड देयर आर कार्टेल्स विच आर हैपनिंग एंड यंग पीपल आर बीइंग फोर्स्ड टू बिकम पार्ट ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस. तो यहाँ पे जिस तरीके का मोड है, फॉर एग्जाम्पल सर्च का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ तो एक अच्छी बात है कि वहाँ पे कस्टमर्स हमको पे करते हैं, यहाँ पे कस्टमर्स से नहीं आता है, डोनर्स से, बाकी सब सपोर्टर्स से आता है. सो वी कैन एक्सटेंड आवर सर्विसेज टू दोज हु डू नॉट हैव पेइंग कैपेसिटी. तो एक्चुअली वो गांव का मरीज भी आ सकता है अमित की सर्जरी का उपयोग लेने के लिए बिकॉज उसकी पेमेंट कैपेसिटी इज़ नॉट स्टॉपिंग हिम और हर फ्रॉम सीकिंग दो सर्विसेज. सेकेंड ऐसा है कि अगर पेशेंट ज़्यादा आए या पेशेंट कम आए, हमारी सैलरी नहीं बदलने वाली है. सो उसमें ना ग्रीड के लिए स्कोप है ना इनसिक्योरिटी है. सो इन दैट सेंस आई फाइंड दिस टू बी अ गुड सस्टेनेबल थिंग. अभी बचा ये अंतिमता सवाल कि वॉट एवर वी आर गेटिंग इज दैट इनफ. सो हाउ डू वी डिसाइड दैट? आई मीन ऑब्वियसली वॉट आई वॉज अर्निंग इन सिमेंटिक उसकी तो कंपैरिजन नहीं की जा सकती. या अमित अगर कहीं दिल्ली में प्रैक्टिस करा लेते हैं किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में तो वहाँ पे वो जितना कमा लेते हैं उससे तो यहाँ पे ऑब्वियसली वो कम ही कमाएंगे. तो बट हु सेड दैट दैट इज़ द बेंचमार्क? हाउ डज एनी वन कंपनीज पर्टिकुलर ऑफरिंग टू मी सडनली बिकम अ बेंचमार्क? एंड व्हाई शुड आई इवन से दैट आई एम गेटिंग पेड लेस? Because when I use the word that I am being paid less or I have made a sacrifice, I am implicitly agreeing to the fact that that was the right benchmark, but I am getting to do something that I like, so I am doing a sacrifice. No, I mean, who said that what Semantic was paying me was the benchmark? So fortunately for each one of us, what we are getting is pretty good. I am a man of simple tastes. I don't have many luxurious desires. I own a simple phone. This is a OnePlus phone which I got this February because my last phone was used for 5 years. This is the costliest phone that I have purchased so far, and this is 18,000 rupees, 18. Not to say that I can't afford an expensive phone. I can probably afford a 10 times expensive phone than this, but I don't need it. So rather than that, the freedom that I get of working on something that is the best utilization of me, I think that matters much more. I would like to append to that question. Right. What I want to add to that question is what you suggested is a salary test. This is very useful for an already established organization. True. But suppose you're in a village and you're not getting any salary over there. So how do we start from the scratch? Because over there you cannot rely on donors. True. You cannot rely on this. And even if your needs are simple, to practically take care of a village, we need some sort of sustenance. True. And since you're not asking, not taking a salary for it, let's assume we are not in search, but just doing social work. True.
how would you make that sustainable into a system? Sure. Okay, great question. So first rule of thumb would be don't start from scratch unless you have some plan already in place. Yeah. For example, last 5 days you were in Sobat Foundation. So Sobat was started by Dr. Suraj Muski, who is one of our Nirman alum. But Suraj didn't just come out of college and start Sobat Foundation. First, Suraj worked for almost 5-6 years, post his MBBS. For 2 years he worked here in Surge, then he worked in multiple other places. So he gathered experience, he gathered expertise, he also gathered goodwill and a support structure. Then he and his friend Rohit, sort of his co-founder, so to say, they did hunt quite a lot for the appropriate place where they would like to start their own organization. They had an initial group of supporters who would help them. Through Nirman, we actually supported Suraj for the first 4 years. So we said to him that you are doing this good venture. So for the first 4 years, you don't have to worry about your salary. We'll pay it through a Nirman fellowship. You focus on building the organization. So that kind of gave him a breathing space to build the organization. And now he has results to show. So now it's easy for him to get support from other people. I won't say it's very easy, but relatively easy. So for example, he made good use of the network that was provided to him by Nirman. So I think all these precautions should be taken. There is no hurry. So if you really want to make it a sustainable thing, take adequate amount of time to chisel down your idea, chisel down the place, put in some financial plan on paper, and while you do that, slowly resources will start accumulating. So I think that's a way to go forward to it. यहाँ पे मेरा घर 2 मिनट पे है. मैं सुबह उठ के आता हूँ, मेरे को चाहिए तो दोपहर को मैं मेरा बच्चा स्कूल से आता है उसको मिल सकता हूँ. आई हैव अ ब्यूटीफुल लेक इन द कैंपस. आई गेट टू वर्क विद रियली ब्रिलियंट पीपल, वैल्यू ओरिएंटेड पीपल. मज़ा आता है. तो मैं क्या सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, बल्कि मैं बोलूँगा कि आई गेट टू ब्रिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माई पर्सनैलिटी टू माई वर्क. तो I think that I am bringing my fuller self into my work, or rather the work is becoming an expression of me. तो ये तो बल्कि it's almost like getting an ability to paint or sculpt. So I really don't think it's a sacrifice. Or I mean, I have quite a sizable amount of control over the kind of work that I do, the kind of people that I want to meet. I don't have to spend too much time into any bureaucratic processes. So I truly feel that this is not a sacrifice, but I am living one of the best possible lives that I could be living. ये पूरे इसके ऊपर इसको बंद करके अपने जो रियल पर्पस आपको लगता है या आपकी लाइकिंग्स जो है उसको बंद करके किसी एसी केबिन में बैठ के अगर मैं सॉफ्टवेयर लिखते बैठता तो दैट वुड हैव बीन अ सीरियस सैक्रिफाइस. एंड फॉर दोज हु हैव लॉट ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आई कैन अंडरस्टैंड दोज पीपल मेकिंग दोज सैक्रिफाइसेस एंड आई वुड रिस्पेक्ट दैट. मेरे ऊपर तो ऐसा कुछ है नहीं. मैं 21.5 साल में ग्रेजुएट हुआ, तब से मैंने मेरे माँ बाप से ना एक पैसा लिया है ना उनको एक पैसा दिया है. तो वो अपना अपना देखते हैं, मैं अपना अपना देखता हूँ. तो मेरे ऊपर वैसे कोई जिम्मेदारियाँ नहीं है कि जिसके लिए मुझे कुछ करना पड़े. सो व्हाई शुड आई डू दैट सैक्रिफाइस. तो मुझे ट्रूली लगता है, मतलब मैं ऐसा सिर्फ बोलने के लिए कि नहीं ऐसा सचमुच नहीं बोल रहा हूँ. और बल्कि है ना, वो सैक्रिफाइस मानना थोड़ा दिक्कत भी इसलिए हो जाती है. अभी इसको थोड़ा प्रैग्मेटिक साइड बता देता हूँ कि सैक्रिफाइस एक तो है ही नहीं, लेकिन अगर किसी को लगता भी हो कि किया है तो भी वो अपने आप को ये स्टोरी ना सुनाए कि मैंने सैक्रिफाइस किया है. क्योंकि क्या होता है, अगर वैसा करे ना तो फिर हम एक ऐसी इम्प्लिसिट एजम्पशन लेके चलते हैं कि दुनिया ने मेरे लिए ताली बजानी चाहिए, देखो मैं सैक्रिफाइस करके आ गया.
अब तो सब ने सुनना ही चाहिए मेरा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो भारत की जनता अपने मन को जो सही लगता है वो करती है, तो वो और अच्छा है। तो मैं सैक्रिफाइस करूं या ना करूं, मेरी नज़र में लोगों को उससे कोई बहुत लेना देना नहीं है। वो इवन इफ आई एम इन सोशल सेक्टर, इफ आई वांट टू मेक समथिंग हैपन, people would contribute to it or align with it if they see some point or benefit in it. So if I start telling myself too much of a story filled with my own sacrifice, then once you start hitting some obstacles, some challenges, तो एकदम ईगो शेक हो जाता है। मैं तो इतना सैक्रिफाइस करके आया था, ये क्या हो रहा है? तो किसी ने तो मुझे बोला नहीं था कि तू आ करके, मेरी खुजली थी इसलिए मैं आया। तो भैया आई हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस ऑल्सो। इसलिए इन माई केस आई ट्रूली डोंट थिंक इट्स अ सैक्रिफाइस, बट देयर कुड बी सम पीपल हु माइट हैव डन इट, बट इवन फॉर देम आई ट्रूली genuinely and humbly request them that don't tell it to yourself or to others. Now आपका पहला सवाल था about benchmarking. You want to add something? हाँ, Yeah, please go ahead. मुझे ऐसे मेरा एक्सपीरियंस मुझे ऐसा लगता है कि बहुत फ्री लगता है मुझे। ऐसा अगर इमेजिन हो तो जो मटेरियल आपने नीड्स बोला, तो मुझे एक्चुअली लगता है कि वो वर्ड थोड़ा गलत लगता है। मटेरियल वांट्स होते हैं। हाँ, exactly. हाँ, तो मुझे ऐसा फील होता है कि जब उस पार्ट ऑफ लाइफ में या फिर जब मैं थी मेरे कॉलेज डेज में या उस टाइम पर, तो जो वो वांट्स थे वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। एंड बेंचमार्क क्या वो जो है वो सारा एक सक्सेसफुल या लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए सारे एक प्रॉक्सी इंडिकेटर्स होते हैं कि पे सैलरी इतना होना चाहिए, फिर आपके क्लोथ्स सारे इस ब्रांड के होने चाहिए, या फ़ोन आपका ऐसा होना चाहिए, या आप जिस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हो वो कैसा होना चाहिए। हर बाहर से लेके अंदर तक सब कुछ डिफाइन होता है उसमें। तो सक्सेसफुल होने का क्राइटेरिया या डेफिनेशन ही वो होता है, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें आती है। तो वो एक रेस है और उसमें जब तक अपन उसमें रहते हैं उसका कोई एंड ही नहीं है। वो इट फील्स लाइक कि उसमें एक बार पार्टिसिपेट करने जाओ तो वो अभी ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो वो इतना स्ट्रेसफुल होता है। तो मुझे पर्सनली वो लाइफस्टाइल बहुत स्ट्रेसफुल लगती है। एंड वो इतना बड़ा सैक्रिफाइस है क्योंकि आप कितना स्ट्रेस ले रहे हो हर टाइम, आप अपने आप को ऐसे वो बस एनालाइज करते रहते हो हर चीज़ के लिए, रादर देन यहाँ पे मुझे ऐसा फील होता है कि ये सब चीज़ें हटा के मैं एक्चुअली फोकस कर पा रही हूँ जो मुझे करना है, तो उसमें एक फ्रीडम है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें बहुत फ्री फील होता है। या तो सैक्रिफाइस से ज़्यादा तो उल्टा ही लगता है कि एम्पावरिंग लगता है ऐसा। You want to say something about the sacrifice bit? I think I agree with what Jashi said. So it goes same for me. मतलब अभी बोल सकते हैं कि मैं ये छोड़ के आया वो छोड़ के आया, but I think I have a beautiful life to work on something which I really want. तो ये तो गिफ्ट है, सैक्रिफाइस नहीं। Wow, gift is a beautiful thing. तो I think I would submit that way. इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूँ कि हाँ, बट ये बात सही है कि ये रियलाइजेशन बाद में आता है, ये पहले नहीं आता है। हाँ, ये बात सही है। तो एक बार अपनी बात कर रहे थे कि सैक्रिफाइस भी कभी नहीं लाइफ में है ही इम्पोर्टेंट। आपको अगर कुछ भी अच्छा पाना है तो बिना सैक्रिफाइस के शायद तो सैक्रिफाइस को अच्छे तरीके से भी देख सकते हो कि शायद आप इनिशियली लग भी रहा है कि सैक्रिफाइस तो एक बार करके देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें वापस नहीं जा सकते हो। वो वैसे भी चीज़ें वही हैं, अगर आपको मटेरियल बॉन्ड्स या वो लाइफस्टाइल कहीं वैसे भी जाने नहीं वाली है। वो अपन को इतना सराउंड करती है कि इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू एस्केप इट बहुत बार। तो शायद कभी कभी सैक्रिफाइस भी। हाँ। आपका जो पहला सवाल था ना अबाउट, उसमें काफ़ी सारी शेड्स थी। मुझे सबसे ज़्यादा वरीसम क्या लगा, मैं बोलता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा वरीसम लगा कि आपने बोला कि वैलिडेशन तो चाहिए, और वैलिडेशन मुझे कैसे मिलेगा, तो मुझे मेरे सैलरी टैक्स से मिलेगा। और
चूंकि आप तो IIT बॉम्बे में क्या लिबरल क्या कुछ तो भी कर रहे हैं ना, लिबरल एजुकेशन। अरे तो फिर भी IIT बॉम्बे ने आपके ऊपर अपना झांसा डाल दिया है। तो इवन आफ्टर गोइंग फॉर लिबरल एजुकेशन, अगर हमारे मन में ये रहे कि माय सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ इज बीइंग डिसाइडेड ऑन अ पैकेज एंड दैट टू इन कंपैरिजन टू माय पीयर्स, तो आई थिंक ज़रा रिस्की मामला हो जाता है। तो I mean, it's a beautiful question. If I have to answer it, let me break it down. आपका पहला था कि बेंचमार्क कैसे तय किया, तो एक्चुअली मेरा बेंचमार्क उल्टा है यार। मेरा बेंचमार्क ये नहीं है कि इतनी सैलरी या इतनी सैलरी या इतनी सैलरी, मेरा बेंचमार्क उल्टा है और उसको मैं बेंचमार्क की जगह थ्रेशोल्ड ये वर्ड इस्तेमाल करता हूँ कि व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड लेवल ऑफ मिनिमम इनकम जिसके नीचे आई वुड बी फोर्स टू नॉट थिंक अबाउट पर्पस। सो इन अ सेंस व्हाट इज दैट थ्रेशोल्ड इनकम कि उतना अगर मेरा हो गया ना तो मुझे पता है कि इतने पे तो मैं जी जाऊंगा, उसके ऊपर आई डोंट हैव टू वरी अबाउट द मनी एक्सिस, आई कैन फोकस माई अटेंशन टू पर्पस एक्सिस। सो जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, राइट नाउ आई मीन विद इन 2 months आई विल टर्न 40. At this stage of my life, probably that threshold income for me right now would be something like 20,000 rupees a month. मतलब आज मेरी जो कोई भी ज़िंदगी है, जिस तरीके का मैं जी रहा हूँ और मुझे 5 साल का बेटा भी है, तो वो पकड़ते हुए शायद से मैं ऐसा मन में रखूँगा कि अगर मुझे 20,000 से कम पैसे मिले तो शायद से मेरे मन में थोड़ा डाउट आएगा, और अगर 17,000 रुपये मिल रहे हैं और पर्पस फॉलो कर पा रहा हूँ तो उसके जगह प्रॉब्ली फर्स्ट आई वुड लाइक टू हैव 20,000 रुपीज़. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग द वर्ड थ्रेशोल्ड. बट इफ आई एम एश्योर्ड 20,000 rupees, beyond that I don't want to focus on the money axis. Whatever additional I get, happy. Well, I'm not saying no to that money, but whatever additional would come, that is bonus. That frees me to contemplate purpose and execute purpose. So इसलिए मेरे लिए मनी का बेंचमार्किंग बहुत लो लेवल बेंचमार्किंग है, which is my threshold. कि जितना मुझे कम से कम चाहिए, वो आपके लिए अलग अमाउंट हो सकती है और किसी के लिए अलग अमाउंट हो सकती है. द एडवांटेज ऑफ दिस थ्रेशोल्ड थिंकिंग इज कि इट टेल्स मी मैं पर्पस की फिराक में घुसना कितने जल्दी चालू कर सकता हूँ. सो द ट्रिक इज हैविंग दैट थ्रेशोल्ड एज लो एज पॉसिबल, बिकॉज दैट फ्रीज यू अप सूनर to contemplate and execute on the purpose question. And the second thing is it frees you up from any sort of monetary comparison. So I mean, my friends from PICT, more than 90% of my friends are in Silicon Valley, in San Jose or San Francisco or Seattle or New York. They would be earning shitload more than me. But that never bothers me ever, and I must say that I'm extremely thankful to them, because they have also never ever allowed money to be even an item of discussion between us. So my friends know that for the past 17 years I have quit IT and I am doing this thing. वो कभी मेरे साथ पैसे के बारे में बात नहीं करते हैं. They are very gracious. मैं जब वहाँ पे था तो मुझे खुद टिकट निकाल के बुला लेते थे, घुमाने फिराने सब लेके जाते थे. So we have managed to keep our friendship completely different from any sort of money axis being there. So I feel fortunate to have those kind of friends. But for me, money benchmarking is this. पैसा कमाना एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट नहीं है रे, काफ़ी आसान चीज़ है. Especially again I am saying for a particular kind of group that we are. So we should acknowledge that privilege and comfort that is almost guaranteed for us. And the first question you asked about sacrifice. So I want to reframe it
with one of the learnings I learnt in Nirman. So, can money buy me freedom? So, for me, the money equivalent was degrees. In our field, usually people want to do MBBS, they want to do post graduation, they want to do super specialty. So I thought, will degree buy me freedom? But then I understood after coming here that in pursuit of getting that degree, I will lose my freedom. So even maybe that amount of money buy me freedom? So in pursuit of earning that money, I will lose my freedom. So I think that lower threshold for anything works, but that freedom is so precious to me. I think that. My question is, of course, to have such a value system, I think childhood upbringing and the experiences you would have in childhood is very vital thing. So could you all make us know about all the experiences and childhood upbringing what you had and how different it is from current generation's upbringing? I mean, we could do that, but I'm somewhat doubtful as to what would it serve. I mean, I do have some interesting childhood experiences to narrate, and I'm sure each one of us would also have it. And partly they could be a little different from what might be your experiences. But in a sense, ऐसा ना उसमें से निकले कि यार इन लोगों को तो ऐसे ही मिला था. इसलिए मुझे एक्चुअली लगता है कि मेरे से ज़्यादा it is much better that people like Jayashree and Amit and Gaju are here, because so to say my grandfather was a freedom fighter, not so to say actually my parents are also into social field their whole life, so obviously है कि मुझे कुछ चीज़ें तो बचपन से मिली भी, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग कुछ कर सकते हैं. So anybody and everybody can do that. मैं तो सच कहूँ आपको तो मुझे बहुत 11वीं-12वीं तक कोई ख्याल भी नहीं था कि मेरे माँ बाप कुछ अलग कर रहे हैं. मुझे तो लगता यही है, मतलब और कुछ ऐसा बहुत अलग कुछ होता है ऐसा कोई मेरे बहुत मन में नहीं था. एक बार मेरी एडमिशन कराने के लिए जब पुणे गए थे तो मुझे याद है रास्ते पे एक व्यक्ति ने सीधा बाइक ही रोक दिया. मैं और मेरे पापा रास्ता क्रॉस कर, तो उसने एकदम बाइक रोक के, अरे डॉक्टर अभय बंग आपकी किताब पढ़ी है. तो मेरे को लगा यार अपना बाप फेमस है यार. मेरे को तब तक पता ही नहीं था. और मेरी एडमिशन हो गई तो बाद में हम एक होटल में गए थे ऐसे आइसक्रीम खाने के लिए. तो होटल का दुकानदार आया और बोले, उसने भी आके बोला मैंने आपकी किताब पढ़ी है. तो मैंने बोला पुणे के लोग बड़े खासे हैं, होटल के दुकानदार भी बड़े वेल रेड होते हैं. तो आई मीन जोक्स अपार्ट, लेकिन आई वाज़न्ट इवन अवेयर कि ऐसा कोई बहुत अलग कर रहे हैं. आई एम प्रीटी श्योर इट डिड हैव सम डीप कल्चरल एंड वैल्यू इन्फ्लुएंसेस, बट आई थिंक व्हाट मैटर्स मोर इज एज ए यूथ आप क्या सवाल खुद पूछते हैं और किसके साथ एंगेज करना चाहते हैं. बिकॉज आज तो ऐसा है कि सभी की स्टोरी सभी को एक्सेसिबल है वैसे, तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हर चीज़ हमारे जीवन में घटी ही हो. दूसरों के जीवन में भी घटी है तो हम पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, मेंटली वी कैन विजुअलाइज. तो what we choose to do as a youth is I think the real crux. So for example, you choosing to spend 10 days here is one very good step. आप सोशल काम ही करो या ना करो ये तो ठीक है, वो बाद में देख लेंगे. बट इवन हैविंग दैट मच ऑफ अ करेज कि जो पूरी भीड़ कर रही है मैं उससे कुछ अलग कर सकता हूँ, 10 दिन के लिए क्यों ना हो लेकिन कर सकता हूँ. या आपको आपका खुद का जो यूनिकनेस है वो ढूंढने में, या आपकी जो इंडिविजुअलिटी है, इंडिविजुअलिज्म नहीं बोल रहा हूँ, इंडिविजुअलिटी बोल रहा हूँ. यू आर नॉट जस्ट वन अमंग द क्राउड, यू आर अ सेपरेट इंडिविजुअल. आपकी इंडिविजुअलिटी ढूंढने में आपको मदद करेगा. और ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स ने या आपके बचपन में आपके ऊपर कोई वैल्यू के संस्कार हुए ही नहीं, सबके ऊपर हुए होते हैं. वो शायद से कभी कभी थोड़े अंदर दब जाते हैं और बाहरी शोर शराबा या बाहरी धूल उसके ऊपर इतनी चिपक जाती है कि वी डोंट गेट इन टच विद दैट. सो आई थिंक youth is the time to contemplate on it. I mean, to speak biologically, in your age,
your brain is becoming capable of dealing with abstract questions. अर्जुन जो है मेरा बेटा 5.25 साल का है, तो what is the purpose of my life, ये सवाल उसको नहीं आता है और आना भी नहीं चाहिए. I would be actually worried if he starts asking that question today. But this is definitely a question that you actually can contemplate with, because youthhood में our brain is becoming capable of dealing with abstract questions, dealing with questions of significance, questions of mattering, questions of visualizing what alternative lives could look like, questions of dealing with right and wrong. So this is precisely the time when one should grapple with these questions. So more than what has happened in the past, whatever has happened. Now that's a fact. But what do we choose to do with that? I think that's, that according to me is more crucial. So sorry for the part of skipping some of the experiences. Maybe if required, I could get into it. But I mean, that's my take on it. Yeah. May I add something? I think we should go for the experience aspect anywhere. The reason being not for answers, I believe that perspective and empathy are very, very crucial. So if we understand your experience and all, we might have a new perspective and something that we would not be able to visualize on our own, which would help our future, as you said. So I think we should get into the experiences anywhere. Okay. तो मैं थोड़ा एक आध कुछ याद करता हूँ तब तक you guys wanna chip in with something? Gaju, you wanna say something, or Amit या जयश्री? Some experiences maybe which had, अब देख के लगता है कि जिसका कुछ wider significance हुआ इस context में. आई थिंक मेरे लिए ऐसा था कि कॉलेज लाइफ तो नॉर्मली थी. ऐसा कोई सिंपल वही पार्ट था कि ऐसा अपना बैचलर्स किया फिजियो में, फिर मास्टर्स करना था फिजियो में, एंड वही प्लान था. बट बीच में कोविड हुआ, तो आई थिंक रिलेटिंग टू व्हाट अमृता सेड अर्लियर कि स्पेस मिला कि थोड़ा सोचने के लिए. और बैचलर्स में मतलब छोटे में ऐसा नहीं था. मम्मी पापा जो सबके बोलते हैं कि अच्छा इंसान बनना है, तो मेरा भी वैसे ही था, बस उतना ही था. और मैं एक्चुअली में छोटे में बस इतना ही बोलती थी कि क्या बनना है, तो एक अच्छा इंसान बनना है, बस इतना ही था. तो ऐसा कुछ ज़्यादा वो नहीं रहता. छोटे छोटे जो लेसन्स अपने पेरेंट्स सिखाते हैं वो कहीं ना कहीं याद रह जाते हैं. वो उनको भी बहुत बार याद नहीं रहते. मेरे एक्सपीरियंस में तो मुझे ऐसा फील हुआ है कि अब बड़े होके वो उनको याद नहीं आते. मैं बोलती आपने ऐसा बोला था, पर उनको याद नहीं आता है. पर वो मेरे लिए इम्पैक्टफुल था शायद. तो ऐसे छोटे में अपनी मेमोरीज होती हैं जो, बट बड़े होके मुझे इतना ही याद है कि कॉलेज डेज में जैसे आप लोग इधर आए, तो मेरे लिए मैं एनएसएस का पार्ट थी. तो हम लोग के कैंप्स होते थे गांव में. तो कॉलेज के पूरे टाइम में मेरे लिए मुझे लगता है कि वो मेरे लिए सबसे इन्जॉयबल. मुझे नहीं पता कि वो पर्पसफुल था उस टाइम पे, ऐसा मैंने नहीं सोचा था. ना ही मेरे इतना थॉट्स इतना डेप्थ में मैंने उस टाइम पे सोचा. पर मुझे बस इतना फील हुआ कि वहाँ मुझे कुछ तो फील हो रहा था कि वो मेरे लिए इन्जॉयबल था, वो मेरे लिए ज़्यादा कंटेंटफुल पार्ट था. तो मुझे जब कोविड आया तो मेरे पास बस टाइम था ये सोचने के लिए कि अब मैं क्या करूं. तो मास्टर्स का जो प्लान था तो वो वहाँ पे, क्योंकि अभी था ही, पर अब कोविड आ गया तो एक ब्रेक आ गया, तो एक काफ़ी स्पेस मिला. तो फिर रियलाइज़ किया कि नहीं यार, थोड़ा कम्युनिटी में काम करना. तो मुझे वहाँ से थोड़ा सा फील हुआ कि वो मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस था कि वो था 15 दिन का ही कैंप था, बट वो एक एक्सपीरियंस था कि यहाँ से मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद कम्युनिटी में ही काम करना है एंड इसके पास जाना है. तो बस इतना ही पता था. उसके आगे की ज़्यादा क्लैरिटी, क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं पता था. और तो इसलिए फिर पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स किया ऐसा. फिर वहाँ से और एक्सपीरियंसेस वो ऐड होते गए, तो वो आइडिया और कॉन्क्रीट होता गया. एंड देन फाइनली आई थिंक जब इंटर्नशिप यहाँ हुई सर्च में, तब वो पूरा शेप आया एंड आई कुड फील मोर कनेक्टेड टू हु आई वॉज एज अ पर्सन. क्योंकि उस पर जैसे बहुत बार धूल चढ़ जाती है, तो वो धूल चढ़ गई थी. तो इवन पब्लिक हेल्थ में भी काम करते करते बट फील यही होता था कि कहाँ करें, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो
मेट्रो सिटीज में भी है लोगों की, है ना। तो फिर कहाँ करे वाला क्वेश्चन आया, तो वो यहाँ आके क्लैरिटी मिली। तो वो एकदम से तो कभी नहीं आई, छोटे छोटे डिसीजंस थे, एंड आई गेस वो छोटे छोटे डिसीजन से ही शायद सही राइट पाथ मिला, बस वो ऐसा। गुड। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ, एक लास्ट? एक्सपीरियंस नहीं बताया ना तो मोहसिन, क्या तय हुआ? एक ही सेकंड मोहसिन, एक्सपीरियंसेस बताने हैं कि नहीं, फिर क्या तय हुआ? कंक्लूड करते हैं, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। तो जैसे चेस के खेल में ऐसे कई बार लगता है कि काश मैंने ये खेल लिया होता, वो नहीं खेला होता था। और जैसे हम एज अ स्टूडेंट्स, हमें ऐसे लगता है कि ए की जगह बी टिक कर लेना चाहिए था वैसे। तो बिल्कुल वैसे ही ये साल बहुत लंबा गया, बहुत कुछ हुआ। तो अगर आप लाइक टाइम ट्रैवल वगैरह करते हैं, आप 2 सवाल है, ओके। अगर आप 1 साल पहले गए और अगर आप 10 साल पहले गए, आप ऐसे क्या अलग करते हैं? वाओ, टेक योर टाइम। एक्चुअली आसान है, एक्चुअली सच बात कहूँ तो 1 साल पहले जाऊँ और 10 साल पहले जाऊँ, एक्चुअली आसान है। आई थिंक 1 साल पहले का है कि आई वुड हैव लाइक टू स्पेंड मोर टाइम विथ माई सन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द ईयर, या सो दैट इट। एंड अगर 10 साल पहले जाऊँ तो मैं बोलूँगा कि मैंने मेरी फिज़िकल हेल्थ का ख्याल रखना तब से ज़्यादा चालू करना चाहिए था। आई थिंक प्रॉब्लम आई बीन जेनेटिकली एंडोर्ड विद गुड फिजिक, बट मैं थोड़ा रेकलेस रहा विथ डाइट, स्लीप, नॉट डूइंग एक्सरसाइज रेगुलरली। तो बस वही 2 है, बाकी तो मेजर कोई चेंज नहीं करूँगा मैं, जैसे ज़िंदगी गई है। So you are satisfied with your life? Yeah, absolutely. Okay. गुड क्वेश्चन है, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कभी। वाह, मुझे एक इसके सवाल के ऊपर एक एक्सपीरियंस याद आया, वो मुझे बस बताना है। वो एक्चुअली मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज का है, बाकी के 2 एक्सपीरियंसेस बाद में बताएंगे। लेकिन आई मीन 2 पेपर्स थे फाइनल ईयर में। एक पेपर था जिसमें मेजॉरिटी न्यूमेरिकल्स थे और दूसरा पेपर था जिसमें पूरा थियरी पेपर था। तो आई डिड रीजनेबली वेल इन बोथ, लेकिन बाद में मैंने कंटेम्पलेट किया माय एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग दोज 2 पेपर्स। तो मैंने ये देखा कि थियरी वाले में ऐसा था कि मुझे जवाब बल्कि पता थे और लिखने थे। एक्चुअली पास होना भी गारंटीड था क्योंकि थियरी था। जिसमें न्यूमेरिकल्स वाले बहुत थे, उसमें एक्चुअली ऐसा वो देख के तो आपको अंत का आंसर तो नहीं पता होता है ना, यू कैन अप्लाई, लेकिन दिमाग ज़्यादा खपाना पड़ा, थोड़ा सॉर्ट ऑफ रिस्की भी था। बट मेरा एकदम पक्का एक्सपीरियंस ये था कि आई एंजॉयड द न्यूमेरिकल वाला पेपर मच 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 मोर देन द थियरी वाला पेपर। And then I thought a lot about why that happened and what is one learning that I can derive from it for my life. So my thought process went like this. मुझे थियरी वाला पेपर बोर हुआ। क्यों बोर हुआ? क्योंकि एक, मुझे जवाब पहले ही पता थे, वो सवाल देख के मुझे पता रहता शॉर्ट नोट होगा, ये जो भी होगा। और मेरी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी भी नहीं थी, ना बहुत फास्ट थी। तो एक्चुअली पूरा 3 घंटा साला टॉर्चर जैसा गया, बिकॉज देर वॉज मच मोर इन माई माइंड, बट आई वॉज कंटिन्यूसली अंडर द स्ट्रेस कि जो दिमाग में ऑलरेडी है पढ़ा हुआ, विल आई बी एबल टू रिप्रोड्यूस इट ऑन द पेपर इन दैट मच टाइम फ्रेम। और कितना भी करूँ, सॉर्ट ऑफ कुछ तो डिससेटिस्फैक्शन लगता ही था विथ वॉट एवर आई हैड रिटन, बिकॉज देर वॉज मोर एंड देर वॉज नथिंग क्रिएटिव इन दोज 3 hours. It was all just a race of taking it out. As compared to that, when I attempted the paper filled with numericals, every question was challenging. थोड़े कुछ मुझे पता होते थे या किसी को कैसे अप्रोच करना है पता होता था, बट एवरी क्वेश्चन में कुछ तो भी नया करना पड़ता था, थोड़ा बीच में सोचना पड़ता था।
और 100% गारंटी नहीं थी कि क्या हो रहा है, लेकिन मज़ा बहुत आया, मज़ा बहुत आया। तो उसके बाद जब मैंने सोचा कि व्हाट डज दिस टेल मी अबाउट माय लाइफ, सो फॉर एग्जांपल जब मैं सिमेंटेक में था तो एवरीथिंग वाज गारंटीड। आई मीन दिन में क्या होगा, साल में क्या होगा, वाज गारंटीड। आई कुड विजुअलाइज कि अगर मैं इसमें रहूँ तो कंपनी का प्रमोशन पैटर्न क्या था वो भी गारंटीड था, और इतने साल के बाद तुम ये करोगे, उसके बाद वो करोगे, इतने साल के बाद ये हो जाएगा, ऐसे प्रमोशन हो जाएगा, और वही था मेजरमेंट का पूरा मैट्रिक। सैलरी कितनी बढ़ जाएगी 10 साल के बाद वो भी सब पता था। इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक राइटिंग अ थियरी पेपर। As compared to that, what I do now is writing a numerical paper. Tomorrow I have a new challenge, and day after tomorrow I have some new challenge, and day after tomorrow I have some new challenge, and there are many challenges whose answers I don't know. But शायद से उसमें मजा है। And theory वाले में और एक प्रॉब्लम क्या था, सही जवाब क्या है ये ऑलरेडी कहीं लिखा हुआ था। वही सही जवाब था। अब मेरा काम है बस उसको रिप्रोड्यूस कर भैया, और कितना भी कर लूं एग्जैक्ट रिप्रोडक्शन तो नहीं होने वाला था, बोथ बिकॉज ऑफ मेमोरी लॉसेस एज वेल एज राइटिंग लॉसेस। सो देयर वाज ऑलवेज अ सेंस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। तो न्यूमेरिकल वाले में अच्छा था कि ऐसा एक सही जवाब कोई नहीं था। यू कुड अप्लाई द सेम प्रॉब्लम विद मल्टीपल मेथड्स, एंड एनी वन ऑफ देम, एज लॉन्ग एज लॉजिक इज करेक्ट, एनी वन ऑफ देम इज एक्सेप्टेबल। सो मैंने सोचा कि मुझे अनसर्टेनिटी चाहिए लाइफ में। If I can predict every damn shit, what's the fun in doing that? तो जैसे चेस के इसमें होता है ना कि एक मूव करने के बाद कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार वैसा कर लेते तो ये कई बार यंग लोगों को एक टेंशन होता है कि बाद में ऐसा ना लगे कि रिग्रेट रहा, तो बाद में ऐसा लगा तो कि यार सिमेंटिक में रह जाता तो मेरे लिए मैंने वो जिंदगी जी ली है। कैसे जी ली? 8 महीने तो फिजिकली जी ली, लेकिन मैंने मेंटली जी ली। मतलब मैंने मेंटली ऐसा मस्त 10-15 मिनट सोच के प्रॉपर बेड में बैठ के कंबल वंबल ओढ़ के ऐसा जी लिया वो मेंटली जिंदगी। ह्यूमन बीइंग्स हैव द एबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्शन, वी कैन सिमुलेट द फ्यूचर इन आवर नियोकॉर्टेक्स, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। तो क्या मैं उस जिंदगी में करता, फिर क्या होता, फिर क्या होता, फिर क्या होता। मैं 70 साल की जिंदगी जी लिया, तो अब मैं फ्री हूँ मिट्टी करने के लिए। अब इधर मेरा टोटल ठुक भी गया, मेरी पूरी लग भी गई, तो भी मेरे को ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैं वो जिंदगी चूज कर लेता, क्योंकि वो मैंने करके देख ली जो भी है, एंड आई नो व्हाट वुड हैव हैपेंड इन दैट। हियर आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन टुमारो, एंड आई लाइक दैट। सो दैट्स व्हाई प्रॉब्ली आपका जो सवाल आया एक्चुअली काफ़ी डीप सवाल था आपका, बहुत सुंदर सवाल है, और इट वॉज अनएक्सपेक्टेड, बट आई थिंक ये जो इतने फट से मुझे जवाब मिल गया है, आई रियली मीन इट। क्या मैंने फिजिकल हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए था, मैंने अर्जुन को थोड़ा ज़्यादा समय देना चाहिए था। सो दैट वाज नो रिग्रेट्स, एंड आई लाइक दैट। So maybe contemplate on your experiences of writing a paper and see what gives you more satisfaction. I enjoy theory more. But usually what you do freedom ज़्यादा होता है theory में. I like it when I don't have the final answer. So you could figure out some contemplation from that applies to your life. I mean, not necessarily कि my logic is the logic, but that gave me something to apply in my own life. Mohsin wants us to conclude. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप लोग इधर आए, तो दैट इट सेल्फ इज़ एन इंडिकेटर कि वो जो स्पेस की हम बात कर रहे थे, तो आप लोग ने कहीं ना कहीं वो स्पेस लिया है थोड़े और डेप्थ में अपने आप को एक्सप्लोर करने का, तो एक वो अच्छी चीज़ है। एंड आई गेस बहुत बार लाइफ में एकदम से कुछ बड़ा नहीं हो जाता है, या एकदम से हम कुछ बड़ा कर नहीं देते हैं। बहुत छोटे छोटे माइन्यूट ऐसे टाइनी डिसीजंस एंड टाइनी एक्शंस होते हैं जो मिलके कुछ बड़ा बनाते हैं। तो ये आज जो डिस्कशन था, आई गेस इट कैन बी सीन एज द फर्स्ट ऑफ द टाइनी एक्शन सबके लिए।
आप लोग के लिए भी नया था, हम लोग के लिए भी काफ़ी नया था, हमने भी रिफ्लेक्ट किया। आई होप आप लोग के लिए भी ये कहीं ना कहीं यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो। तो थैंक यू आज के लिए सबको। थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। सिमेंटेक में जाता तो ऐसी शाम कहाँ आती।